Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I'm Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है How a Muslim Jinn Leads Me to Accept Islam, Black Magician Story. So guys, अभी तक जो हमने अपने चैनल में वीडियोस देखी हैं वो इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड ऐसी वीडियो रही हैं. बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम ऐसी कोई वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं. ब्लैक मैजिक के बारे में बेसिकली ये स्टोरी है, तो वीडियो देख के ही पता चलेगा कि क्या है मतलब इस वीडियो में. गाइस, ये वीडियो हम पहली बार अपने चैनल में देख रहे हैं. वीडियो देखने से ही पता चलेगा कि इस्लाम में काला जादू के बारे में क्या बोला गया है. वो तो वीडियो देखने से ही अभी पता चलेगा. ये वीडियो मैंने पहले देखी हुई है, हंसी टीवी की है. बहुत अच्छी होती है हंसी टीवी की वीडियो एंड मतलब रियलिटी बताई जाती है उनकी वीडियो में. काफी बड़ी थोड़ी बड़ी होगी, 10 मिनट की वीडियो होने वाली है. इसमें सारी हम चीजें बताएंगे. बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. तो गाइस बिना किसी देरी के Let's स्टार्ट start द the वीडियो. Jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if they're practicing correctly. Our attachment to energy kind of works like a cup, and if you're praying 5 times a day, this cup will be full. Worshipping a false god or calling them by the incorrect name is going to leave that gap, and it's going to allow something else to come in instead. And just going to church on Sunday is not enough to keep you protected, especially in modern day society. یہ تصویر جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہے ڈریون ٹریچر، جو ایک بہت ہی بڑا شیطانی جادوگر تھا اور شیطانی جنات سے مدد لے کر انسانوں پر جادو کیا کرتا. لیکن حال ہی میں اس نے یہ بیان دیا کہ میں چاہ کر بھی مسلمانوں پر، ایسے مسلمانوں پر جو کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو ایک نور یا روشنی سے بھرے رکھتے ہیں، ان پر چاہ کر بھی میں کوئی جادو نہیں کر سکتا. انفیکٹ یہ ان پر اثر ہی نہیں کرتا. یہ بات میرے لیے کافی حیران کن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی بالکل اسی طرح کی ایک رشین جادوگرنی نے بھی لائیو ٹی وی شو پر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ میں چاہ کر بھی پریکٹسنگ مسلمانوں پر جادو نہیں کر سکتی. کوئی روحانی طاقت مجھے ایسا کرنے سے روکتی ہے اور میرے جادو کو بے اثر کر دیتی ہے. Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons and so on. Muslims as a rule passionately believe and passionately give energy to their egregore. لیکن ڈریون کا معاملہ ذرا مختلف ہے کیونکہ اس کی کیوریوسٹی نے کہ ایسا کس وجہ سے اور کس بنیاد پر ہو رہا ہے اسے اسلام جیسی نعمت سے نواز دیا. اس کی کہانی اور اسلام کی طرف اس کی رہنمائی کرنے والے انکشافات بھی بہت دلچسپ ہیں جو کہ آپ کو ضرور سننے چاہیے. ڈرائیور کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کوئی جادو کسی مسلمان پر کرنے کی کوشش کروں تو کوئی پازیٹیو انرجی اس شخص کے گرد ایک حلقہ بنا کر اس کی حفاظت کرتی ہے جس میں کوئی بھی جن داخل ہو کر مداخلت نہیں کر سکتا. ان مسلمانوں کا دل بالکل ایک کپ کی طرح ہے جو کہ اللہ کی عبادت سے ہمیشہ ایک پازیٹیو انرجی سے بھرا رہتا ہے. جب یہ مسلمان عبادت اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں یا کسی غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں جو کہ من گھڑت ہیں تو یہ انرجی کم ہونے لگتی ہے اور اسی وقت ہمیں یعنی شیطانی جنات کو اس کے دل کے اندر گھسنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی لیے اس کپ کو فل رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر عبادت ضروری ہے جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں، ورنہ صرف سنڈے کے دن چرچ جانے سے یا پھر بتوں کی پوجا کرنے کے لیے مندر میں جانے سے یہ انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے. ڈرائیور مذہب کے لحاظ سے کرسچن فیملی کے اندر پیدا ہوا مگر شروع سے ہی کرسچینٹی کے عقیدوں کے اندر شک و شبہات کے اندر رہتا. اسے خدا اور جیسس کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جب وہ دیکھتا تو سوچ میں پڑ جاتا کہ صرف اپنے خدا کو سب سچا کہتے ہیں اور باقی سب کو جھوٹا. پر اسلام کے اندر تقریباً وہی سب کچھ موجود ہے جو کہ کرسچینٹی کی تعلیمات کے اندر موجود ہے سوائے خدا کے بیٹے کو چھوڑ کر، کیونکہ یہودیت تو بالکل ہی جیسس کا انکار کرتی ہے بلکہ ان کو شیطان کہتی ہے، نعوذ باللہ. میں ایک وائٹامن سٹور پر کام کیا کرتا تھا جہاں پر مجھے ایک لڑکی ملی جس نے مجھے یہ سب یعنی جنات سے رابطہ کرنا اور قبالہ جادو سکھایا اور قبالہ جادو کی تمام چیزیں سکھائی. میں نے یہ سب کچھ سیکھ کر جنات کو قابو کرنا سیکھ لیا. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شیطانی جنات کی جادو کی کتابیں ہوں یا پھر کسی بھی مذہب کے دینی تعلیمات انہیں پڑھتے ہوئے وہ ٹائم ٹو ٹائم ورس ہوتی جاتی ہیں. وہ کوئی سینس نہیں بناتی بلکہ ایک دوسرے سے میل ہی نہیں کھاتی. مگر اسلام واحد ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات کو یعنی قرآن پاک کو آپ جتنا مرضی گہرائی کے اندر پڑھتے جائیں ٹائم ٹو ٹائم یہ مزید لاجیکل اور سینس بنانے لگتا ہے. انسان کو وہ سب کچھ سمجھ آنے لگتا ہے جس کے متعلق وہ دنیا کے اندر خود سے مذہبی طور پر سوال کرتا ہے، خاص طور پر کرسچینٹی کے. Religion that I've studied that gets better the more I learn.
When I studied the Kabbalah or I studied the Christian books, it just gets worse over time. The contradictions get worse, the belief system gets worse, the morals get worse. मुसलमान जिस किताब को फॉलो करते हैं सब इसकी तालीमात पर बिल्कुल एक जैसी सोच और इसका मतलब समझते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब भी मैं कोई आयत पढ़ने की कोशिश करूं तो मुझे बताया जाता कि ये आयत तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं या फिर इसका मतलब कुछ और है। और ये बातें मुझे हमेशा से शक व शुबा के अंदर डाल देती थी कि जो अल्फाज आसमान से नाजिल हुए इनका मतलब अलग अलग कैसे हो सकता है। और इसी सोच ने ड्रेवन को एक एथियस्ट बना दिया था, और जब इसने काला जादू करना शुरू किया तो इसे अपने घर के अंदर कई जिन्नात ने परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका कहना है कि आखिरकार मेरी मुलाकात एक मुसलमान जिन से हुई जिसकी तालीमात ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और सारी हकीकत मेरे सामने आ गई कि क्यों आज दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या मकासद हैं और कौन लोग हैं। हम सब इंसान असल में मुसलमान ही पैदा होते हैं। जो मीडिया आपको ये बता रहा है कि इस्लाम एक शैतानी मजहब है, वो किसी और की जबान बोल रहा है, इनकी जबान जो कि जीसस को नाउजुबिल्लाह शैतान मानते हैं। जो लोग इनकी बातों के अंदर आकर इस्लाम पर हमला कर रहे हैं वो दरअसल इस्लाम के मुतालिक कुछ जानते ही नहीं हैं। मैं जब भी किसी नाइट क्लब के अंदर जाया करता या किसी प्राइवेट पार्टीज के अंदर तो वहां पर मैंने क्रिश्चियन और ज्यूश अकीदा के लोगों को ऐसी ऐसी खुराफात करते देखा जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, मगर कभी भी जिंदगी के अंदर मैंने किसी मुसलमान को ऐसा करते नहीं देखा सिवाय गुमराह मुसलमानों के। And I can tell you guys right now, I've seen a lot of Jewish women and Christian women inside of these clubs doing wild things. And I have never seen a Muslim woman up in these clubs doing raunchy. दुनिया के तमाम पैगंबरों का वही मकसद था जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, और यही चीज सेंस और लॉजिक भी बनाती है। सोशल मीडिया पर ड्राइवर की वीडियोस वायरल होने के बाद और खुल्लम खुला फलस्तीन की सपोर्ट और अपने अकीदे का इजहार करने के बाद जिस यहूदी कंपनी में वो काम कर रहा था, इसके मालिक ने इसको बुलाकर $1 मिलियन तक की ऑफर की कि वो अपने अकीदे को ना सिर्फ ना बदले बल्कि इसराइल की सपोर्ट और यहूदियत के हक के अंदर सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाए। लेकिन इसने अपने दिल की आवाज और अपने जमीर का सौदा करने से इनकार कर दिया और आखिरकार इस्लाम को कबूल कर लिया। इसका कहना था कि मुझे शैतानी दुनिया से निकलने के अंदर बहुत वक्त लगा क्योंकि जिन्नात से किए गए एग्रीमेंट को तोड़ने के अंदर एक लंबा वक्त चाहिए होता है, पर मैं खुश हूं कि मैंने आखिरकार जिंदगी के मकसद और सुकून को हासिल कर लिया। वो कहता है कि कुरान के अंदर वो कुछ बयान किया गया है जो कि आज के दौर के अंदर होने वाला है। जिस तरह से आज सूद ने अमेरिकन और दुनिया की इकोनॉमी को तबाह किया, कुरान ने आज से 1400 साल पहले इससे मना किया था। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आज अमेरिका के अंदर फैमिली सिस्टम तबाह हुआ, कुरान ने इससे पहले बेहयाई से रोकने के लिए पर्दे का हुक्म दिया। इसी मोडेसिटी और अल्लाह के हुक्म की वजह से मुसलमान नाजेबा किस्म की चीजों से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से शैतानी जिन्नात चाहकर भी इन पर हमला नहीं कर सकते। इनको अपनी जिंदगी का मकसद बिल्कुल क्लियर होता है और इसी वजह से इनको डिप्रेशन भी कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान में हराम खाने से मना किया, जो कि आज के दौर के अंदर साइंस भी खुद साबित कर रही है कि आपकी जिंदगी के लिए हलाल किस कदर जरूरी है। ये भी बताया कि दुनिया के अंदर सिर्फ दौलत कमा लेना तुम्हारी कामयाबी नहीं है, क्योंकि आखिर तुम्हें भी मौत है। ये दौलत तुम्हें दुनिया की जिंदगी को खरीद कर नहीं दे सकती। Around 1400 years ago, the Quran warned us about things that are happening today. The first big one that most Americans are a victim of is usury or interest. That receiving or paying interest on these loans is haram or a major sin. And interest is so dangerous that it doesn't only affect the average person. If you look at 2008, what they did with the housing market, they collapsed the entire American economy by doing this, and it's going to start happening again in January. But that's a whole different subject. People get mad about that. Now, another big part of the Quran or Allah's word is how they speak on women. We're all taught to look away from a woman's beauty whenever they are not modest. Now, this is very important for multiple reasons. One, it teaches men to not look at women in that manner. I can't use the exact words to describe it on here, but you guys understand what I'm saying. Another reason why this is so important is because this is a method used by Iblis and the jinn to corrupt us. Consuming adult content and content in that manner is causing depression and even worse. And I think everybody will agree with me on this one, that that kind of content is destroying the world. Now, another big major teaching of the Quran is surrounding food. There's a very specific process or set of rules that you need to follow when making the food halal, especially whenever it comes to meat and animals. इसका मजीद कहना था कि अगर आप जीसस के सामने इबादत कर रहे हैं तो वो इबादत दरअसल आप जीसस की नहीं बल्कि शैतानी जिन्नात की कर रहे हैं। यही वजह है कि जब कोई शख्स ये दावा करता है कि मैंने जीसस से राब्ता करके किसी रूहानी चीज से राब्ता किया, उस रूहानी चीज ने मुझे रिस्पॉन्स किया, तो वो और कोई चीज नहीं बल्कि जिन्नात ही हुआ करते हैं, जो कि खुद से जानबूझकर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको इस कुफ्र और शिर्क के अकीदे पर मजबूत कर सकें। आपको यकीन हो जाए कि यही सिर्फ सच्चा दीन है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म करके ये आपके दिलो दिमाग को कंट्रोल कर सकें। I hope everybody understands that if you've prayed to Jesus, you're actually praying to a demon or a jinn. Like speaking to Jesus, speaking to the things that aren't living is not a thing.
The only way to speak to things that aren't alive besides God himself is speaking to the jinn or speaking to demons. And what scares me the most whenever people comment that they communicate with Jesus is it implies that they get responses back. That tells me they've done enough times and mustered up enough energy with this jinn that it is responding to them. इसलिए आपसे यही कहूंगा कि चाहे आपका अकीदा कोई भी हो, सिर्फ खुदा की इबादत करो, ना कि जीसस की। खुदा को, अल्लाह को जिस मर्जी जबान के अंदर मानो, मगर इसका शरीक कभी ना बनाओ। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि इस तरह के कई एक्सपीरियंसेस ड्राइवर की तरह के और कई लोग भी कर चुके हैं, जिनका मानना है कि इन्हें इस्लाम की तरफ हिदायत और किसी ने नहीं बल्कि मुस्लिम जिन्नात ने दी, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि इनकी हदूद क्या है। अल्लाह ने इंसानों की तरह जिन्नात को भी सोचने समझने की सलाहियत दी है, और जिस तरह से शैतानी जिन्नात मौजूद हैं तो बिल्कुल उसी तरह से रहमानी जिन्नात भी इंसानों की तरह इंसानों को तबलीग करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुनिया के इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए पैगंबर और रसूल थे। ड्राइवर की तरह अगर किसी इंसान की किस्मत के अंदर हिदायत लिखी और वो इसके लिए कोशिश भी करे तो अल्लाह ताला भी इसके लिए कई तरह के वसीले बनाकर इसको हिदायत जरूर देता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कोशिश करना पड़ती है। लेकिन हम मुसलमान कितने खुशकिस्मत हैं जिन्हें बिना कोई तकलीफ उठाए और बिना कोई मेहनत किए अल्लाह ने इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, लेकिन हम लोगों ने फिर भी अल्लाह की इस नेमत की और खुद अल्लाह की जात की कदर नहीं की, बल्कि खुद फिरका फिरका होकर गुमराह हो गए। और एक बार जो शख्स इस गुमराही के रास्ते पर चल पड़े, अल्लाह के जिक्र से हमेशा के लिए गाफिल हो जाए, तो इनका रहबर, इनको रास्ता दिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि शैतान ही होता है, जब तक कि ये तौबा न कर लें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जिनकी जिंदगी का मकसद ये था कि वो बाकी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आज इन लोगों को अल्लाह की हिदायत का रास्ता दिखाना जरूरी है, ताकि इनको हिदायत और गुमराही से निकाल कर असल इस्लाम का तारुफ हो। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। गाइड, वीडियो देखने से हमें यही मालूम हुआ कि जो काला जादूगर था वो अपना जादू मुस्लिम पर भी चलाना चाह रहा था, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो 5 बार की नमाज पढ़ते थे। इसलिए वो जादूगर भी बड़ा हैरान हो गया कि इन पर इसका असर क्यों नहीं पड़ा। तो उन्होंने भी अपना उन्होंने भी इस्लाम को पढ़ा और उसके बारे में जानकारी ली, तो वो भी उन्होंने भी इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। हाँ, वो लास्ट में उन्होंने फिर अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। मतलब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब पहली बार हमने भी मतलब ऐसी कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब वो सब पे अपना जादू कर पाते हैं, बस उन मुस्लिम्स पे नहीं कर पाते जो 5 बार की नमाज पढ़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सभी होती है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी एक ही मैजिशियन ने बोला, मतलब ऐसे कई मैजिशियन हुए हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि मतलब सिर्फ मुस्लिम्स ही ऐसी मतलब लोग हैं जिन पे ये उनका ब्लैक मैजिक नहीं चल पाया। मतलब उन्होंने वीडियो में नाम भी लिए थे, वीडियो में भी उन्होंने भी ऐसा बताया है। वीडियो में भी उन्होंने नाम लिया था, मतलब जिन पे वो उन्होंने करना चाहा, मतलब सॉरी जिन्होंने किया, बट मुस्लिम्स पे वो चीज़ असर नहीं कर पाई। एंड ये हंसी टीवी की वीडियो थी। हंसी टीवी की वीडियो बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो पे उनकी रिएक्ट करना चाहिए। एंड ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है उन्हीं के चैनल पे, मतलब जो इस्लामिक स्टोरी क्योंकि उनका रहता है, तो और भी उनकी ऐसी वीडियो बनी हुई है, तो हम उस पर भी ज़रूर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लैक मैजिक। एंड जैसा उन्होंने बताया, ये टॉपिक हम फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे अगर और भी कोई टॉपिक पे मतलब जो इंटरेस्टिंग ऐसा कोई हो तो आप बताना, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।